Hello students, today our topic is good handwriting and two questions that are related to this topic are much important. First is ways to improve handwriting and second is characteristics of good handwriting. Okay, let us start. We can say that handwriting is a language that reflects your personality. जो हैंडराइटिंग है वो किस तरह की लैंग्वेज है जो आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करती है. ठीक है, like listening is a language by ear, thinking is a language by mind, speaking is a language by mouth, reading is a language by eye. Similarly, in this way we can say that handwriting is a language by hand. Okay, and in other words, handwriting is a mirror of the state of mind of writer and the personality. जो हैंडराइटिंग है वो किसको प्रेजेंट करती है? राइटर के स्टेट ऑफ माइंड्स को और उसकी पर्सनैलिटी को. ठीक है, नाउ हैंडराइटिंग एज अ डायरेक्ट लिंक विद वंस पर्सनैलिटी. जैसे भी हमने कहा था कि जो हैंडराइटिंग है उसका डायरेक्ट लिंक किसके साथ होता है? किसी की भी पर्सनैलिटी के साथ. ठीक है, नाउ वेज टू इम्प्रूव हैंडराइटिंग स्किल. आइए देखते हैं कि हैंडराइटिंग स्किल को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है. फर्स्ट इज कंसिस्टेंट राइटिंग. कंसिस्टेंट राइटिंग मीन्स टू से letters should be equal and in a correct manner or in a better way. ठीक है, placement of letters should be parallel with the horizontal line. All the letters should be parallel to horizontal line and the alignment should be in a straight way or in a better or correct way. ठीक है, you can see two patterns on the screen, right way and wrong way, and you can easily find the difference between these two ways. ठीक है, in first case all the letters are parallel to horizontal line and alignment is correct, but this method is not followed in second way. ठीक है, so there should be consistency in writing. Second is uppercase letters. Uppercase letters means capital letters and lowercase letters means small letters. So always uppercase letters should be taller than lowercase letters. ठीक है, and the size of all uppercase letters should be consistent. ठीक है, सभी uppercase letters का साइज़ क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. ठीक है, एंड चेक द अलाइनमेंट ऑफ ऑल अल्फ़ाबेट्स. और राइटिंग से पहले जो सारे अल्फ़ाबेट्स हैं उनके अलाइनमेंट को आपने चेक करना है. ठीक है, कि वो स्ट्रेट हैं या नहीं है, इन्हें प्रॉपर में हैं या नहीं है. ठीक है, यू कैन सी इन फर्स्ट फिगर ब्लैक मिरर, B is taller than LACK and M is taller than IRROR, but in second case it is not followed. ठीक है, then you can easily find the difference between the uppercase letters in both these two patterns. Now connect. Let us see what is the use of connect in handwriting. Don't join and mix letters. Okay, and don't connect words with each other. आपने ध्यान रखना है हैंडराइटिंग लिखते हुए कि आपने ना ही वर्ड्स के अंदर वर्ड्स मिक्स करने हैं, ना ही अपने लेटर्स के साथ लेटर बहुत ज़्यादा मिक्स करने हैं. ठीक है, यू कैन सी द स्पेलिंग ऑफ कनेक्शन ऑन द स्क्रीन. कनेक्शन इन फर्स्ट पैटर्न NNEC ऑल आर ज्वाइन टू ईच अदर, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ ज्वाइन है एंड जो इसे जो रीड इजीली नहीं किया जा सकता. ठीक है, एंड बट इन सेकेंड वे देयर इज सम स्पेस बिटवीन एन ई सी एंड ऑल लेटर्स, बिटवीन ऑल लेटर्स. ठीक है, तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है व्हाइल कनेक्टिंग लेटर्स एंड वर्ड्स. दे डोंट बी ज्वाइन एंड मिक्स. ठीक है, एंड थर्ड इज सिटिंग पोस्चर. इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट. कीप योर शोल्डर्स रिलैक्स while sitting. ठीक है, और we can say that while writing, sitting should be comfortable and the posture of sitting should be right. And we can say that it is the duty of teachers to encourage the children to sit up in a straight way while writing. ठीक है, next one is grip. Grip is the way of holding the pen or pencil. ठीक है, hold the pen or pencil firmly enough to control it but not so tightly as to restrict movement. That we can say that student can choose any way of grip according to his
comfortability or his own choice. ठीक है, because holding your pen or pencil too tightly or too loosely will result in poor handwriting. तो जो स्टूडेंट को कंफर्टेबल लगता है, टीचर को चाहिए कि स्टूडेंट को वही वे अडॉप्ट करने दें, और अदरवाइज़ जो अगर बहुत ज़्यादा जो ग्रिप है वो लूज़ होगी या फिर टाइट होगी, तो जो आपकी हैंड राइटिंग है वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी रिजल्ट इन पुअर हैंड राइटिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज स्पेसिंग. स्टूडेंट्स ऑलवेज शुड बी केयरफुल अबाउट द स्पेसिंग. ठीक है. देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स एंड द वर्ड्स. ठीक है. बिकॉज we have already said that handwriting reflects your personality. ठीक है. Now you can easily see these three patterns. आप इन तीनों पैटर्न्स को ध्यान से देख सकते हैं. इन फर्स्ट पैटर्न, इन सेकेंड पैटर्न एंड ऑल्सो इन थर्ड पैटर्न. ठीक है. जो फर्स्ट के 2 पैटर्न्स हैं उसमें जो स्पेसिंग है वो प्रॉपर नहीं है. ठीक है. उसमें स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है. बट जो थर्ड पैटर्न है उसमें स्पेसिंग क्या है, बिटवीन लेटर्स एंड बिटवीन वर्ड्स. ठीक है. वो एकदम करेक्ट है. तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान रखना है एट द टाइम ऑफ हैंड राइटिंग दैट देयर शुड बी प्रॉपर स्पेसिंग बिटवीन द लेटर्स एंड ऑल्सो बिटवीन द वर्ड्स. नेक्स्ट इज स्लैंट. स्लैंट इज द वे ऑफ राइटिंग योर लेटर्स. ठीक है. यू कैन ऑल्सो सी 3 टाइप्स ऑफ स्लैंट: राइट स्लैंट, लेफ्ट स्लैंट and straight. Keep the slants consistent, means you have to remain consistent on one slant at the time of writing. ठीक है. आपने स्लैंट्स को चेंज नहीं करना है अपने. अगर आप कोई कुछ भी लिख रहे हैं तो एट द टाइम ऑफ राइटिंग यू हैव टू कंसिस्टेंट. ठीक है. टू ऑन वन स्लैंट. ठीक है. जो भी आप स्लैंट चूज़ कर रहे हैं आपने उसी को फॉलो करना है. ठीक है. Now next is tangle. Tangle means don't tangle letters and words. means कि आपके जो words हैं जब आप lines में लिख रहे हैं they should not be intermixed with each other. ठीक है. आप इसमें देख रहे होंगे ऊपर वाली जो 3 lines हैं. ठीक है. उसमें जो words हैं उनके जो letters हैं एक दूसरे के अंदर मिक्स हो रहे हैं. ठीक है. और इस तरह से जो words हैं उनको जो रीड करना है वो प्रॉब्लमेटिक है. ठीक है. और नीचे आप देख रहे होंगे कि जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के साथ सेपरेट हैं. ठीक है. यू कैन ईजिली सी द लाइन्स सेपरेटली. आप इजीली लाइन्स को देख सकते हैं. ठीक है. टेंगल मीन्स कि इंटरमिक्सेस विद ईच अदर. ओके. नाउ दीज वर द सम वेज टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, बट ऑल्सो देयर आर सम सजेशंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टीचर्स. ठीक है. कि जो टीचर्स हैं वो किस तरह से कोऑपरेट कर सकते हैं. ठीक है. और हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट्स को एट द टाइम ऑफ हैंड राइटिंग. While the students are writing, the teacher should go around the class to ensure the students are making the correct movements or not. ठीक है. जो टीचर है वो राउंड लगा के चेक कर सकते हैं कि जो राइटिंग मूवमेंट्स हैं वो करेक्टली हो रही हैं या फिर नहीं हो रही हैं. ठीक है. एंड विद इन दिस students should use the 4-line exercise books for doing written work during the first 3 years of English learning. जो students हैं हम कह सकते हैं कि उनको प्राइमरी क्लासेस में और प्री प्राइमरी क्लासेस में जो 4 lines exercise books हैं वो इंग्लिश के लिए यूज़ की जा सकती हैं. ठीक है. And the teacher should point out to the students the direction of movement in the formation of various letters. जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस लेटर्स बाय द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट. ठीक है. किसी जो डिफरेंट लेटर्स हैं उनकी फॉर्मेशन. ठीक है. उनकी मूवमेंट की डायरेक्शन. ठीक है. उनके बारे में उनको गाइडलाइंस प्रोवाइड करके. एंड विद इन दिस द टीचर शुड ऑल्सो पे इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट्स. ठीक है. इट इज़ द मेन ड्यूटी ऑफ अ टीचर. ठीक है. जो टीचर है उन्हें इंडिविजुअल अटेंशन देनी है हर एक स्टूडेंट्स को इन द क्लासरूम. ठीक है. एंड इफ़ देयर इज़ एनी ड्रॉबैक देन शी कैन प्रोवाइड देम रेमेडियल टीचिंग. ठीक है. नाउ ऑल्सो specimens of good handwriting should be displayed in the class.
जो गुड हैंड राइटिंग है उनके सैम्पल्स, उनके स्पेसिमेंस हैं, वो भी क्लास पे डिस्प्ले किए जा सकते हैं। नाउ हमने इसमें जाना कि जो हैंड राइटिंग है, ठीक है, उन्हें हम किन किन तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और हम यह लास्ट में कह सकते हैं, वी कैन सी दैट गुड हैंड राइटिंग इज़ द मार्क ऑफ क्लियर माइंड एंड वेल अरेंज्ड थॉट्स, ठीक है। सो देयर इज़ ग्रेट नीड टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग फॉर ईच वन, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। हम कल अपने टॉपिक में डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग। थैंक यू।